Hello dear students, I Vednidhi Gonial, PGT History of KV3 Amritsar welcomes you in my today's class, Chapter 14 Understanding the Partition. In today's class, we will discuss on the topic Partition of the India. We will come to know about the main topics and themes of the partitions. Okay, I hope you will enjoy this chapter very well. पार्टीशन देश की आज़ादी का वक्त था ये। कब पार्टीशन हुआ, किस तरह से प्लानिंग की अंग्रेज़ों ने, किस तरह से हम कई साल तक अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बने रहे, इस पर हम एक चर्चा करेंगे। उस पार्टीशन का इफ़ेक्ट क्या हुआ लोगों पर, किस तरह से लोगों की आगे की ज़िंदगी उसने तय की। एक बहुत बड़ी आबादी की शिफ्टिंग थी एक देश से दूसरे देश की तरफ, और ऐसा बहुत ही कम इतिहास में देखने को मिलता है। In this chapter, we will discuss the history of partition, why and how it happened. We will also discuss how the history of these experiences can be constructed, maybe through discussion, oral discussion, or maybe with interaction with the official. But in meantime, we will also check the bona fideness, truthfulness of these facts by comparing with another sources like diaries, government reports, newspaper and magazines. Okay, I had divided this chapter under following headings like introduction, partitions or Holocaust, why British left India, partition, circumstances and causes, growth of communalism, failure of Congress, provincial election of 1937, Pakistan resolution, post-war development after cabinet mission towards partition, role of Mahatma Gandhi, regional variation in partition, oral testimonies and final analysis. Okay, and similar way I had divided these all topics and classified under 4 heads. In 4 video lessons I covered these topics. So in first video lesson I will cover up to partition, circumstances and causes, that is 4th PPT slides. इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं ये पार्टीशन क्या है, किस लिए ये पार्टीशन हुआ, कौन इसके लिए उत्तरदायी था। हमने सदियों की गुलामी देखी, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन ये सदियों की गुलामी के बाद भी जो हमें आज़ादी नसीब हुई, इस आज़ादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। कुछ ने आज़ादी लेने के लिए ब्रिटिशर्स से लोहा लेते हुए, ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ते हुए, और कुछ ने अपनों से लड़ते हुए जान की कुर्बानी दी। इसलिए ये पार्टीशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से कभी हमने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और कभी अपनों से लड़ाई लड़ी। हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने इस दर्द को कुछ इस तरह से भी उल्लेख किया है कि आज़ादी के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएं झेली हैं, कुछ पीड़ाएं अब भी हैं, फिर भी एक काला अतीत है कि जो समाप्त हो चुका है और सुनहरा भविष्य हमारा आह्वान कर रहा है। दिस इज़ ए ब्लैक स्पॉट ऑन ह्यूमैनिटी। क्यों ब्लैक स्पॉट है? बिकॉज सो मैनी पीपल्स वर किल्ड, बिकॉज women's they were raped, abducted and sold so many times. So we can say this is a black spot on the humanity. History of partition, why and how, what are the reasons, what are the causes responsible for the partition and how it happened. So we will discuss about these points also. It is not only the partition of the geographical area and assets but also a partition of heart. ये सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों का ही विभाजन नहीं हुआ, ये सिर्फ संपदाओं का ही, असेट्स का ही, संपत्तियों का ही विभाजन नहीं हुआ, ये विभाजन था दिलों का भी। और वो दिलों का विभाजन इस तरह से हुआ कि आज तक वो दिल जुड़ नहीं पाए। आज भी हमारे पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर है, दोनों देशों की दुश्मनी आज भी बरकरार है। पार्टीशन और हॉलोकास्ट। पार्टीशन विभाजन, या इसे कह सकते हैं महाध्वंस। वर्ड होलोकास्ट का यहाँ पे मतलब है महाध्वंस, महाविनाश।
Word Holocaust was used by historian for the massive massacre in Germany by Hitler. All you are aware of the Second World War from 1939 to 1945. This time Hitler has carried out so many bad things, had imposed so many bad things on the people like Jews, यहूदियों पर उसने काफ़ी अत्याचार किए. Scholars have used the expression Holocaust for incidents happened during the partition of India and Pakistan in 1947. Partition caused large scale violence. एक बड़ी मात्रा में हिंसा होती है, काफ़ी बड़े स्केल पे हिंसा होती है पूरे देश में. थाउजेंड्स ऑफ पीपल किल्ड, कई हज़ार लोग मारे गए. मिलियंस वर रेंडर्ड होमलेस, और बहुत सारे लोग, कई लाख लोग शरणार्थी बन के एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहे. एंड दे ट्रांसफॉर्म इन रिफ्यूजीज, शरणार्थी बनकर वो जगह जगह जो है अलग अलग कैंपों में इस तरह से अपना जीवन अपने बच्चों के साथ व्यतीत करते रहे. अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन हैड टू मूव अक्रॉस द न्यूली क्रिएटेड बॉर्डर्स, और लगभग 15 मिलियन के करीब ऐसी जनसंख्या थी जिसने जो है, जो नया नया भारत का विभाजन हुआ था, एक तरफ से दूसरी तरफ गए. सडनली दे लॉस्ट ऑल देयर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी चल अचल संपत्ति का उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ. मोस्ट ऑफ देयर मूवेबल असेट्स एंड वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एज वेल. संपत्ति का तो नुकसान हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ उनको अपनों का जो बिछो है वो सहना पड़ा, अपनों से बिछुड़ना पड़ा, उनके दोस्तों से बिछुड़ना पड़ा. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर लोकल और रीजनल कल्चर एंड वर फोर्स्ड टू स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच. उनको अपना जो वहाँ का स्थानीय संस्कृति थी, जो क्षेत्रीय संस्कृति थी, उस क्षेत्रीय संस्कृति से भी मरहूम होना पड़ा, और उन्हें अपना जीवन अब एक नए सिरे से शुरू करना पड़ा, तिनकों से शुरू करना पड़ा. मतलब अब वे दूसरे देश में आ गए, और दूसरा देश क्या था, ये तो उनका ही अपना देश था, लेकिन विभाजन हो गया तो अब ये देश की सीमाएं बदल गई, और उन्हें अपना जीवन नए तिनकों की तरह उन तिनकों की मदद से अपना जीवन शुरू किया. अब प्रश्न आता है कि ब्रिटिशर्स ने क्यों भारत छोड़ा. हम सदियों तक उनके गुलाम रहे, लेकिन व्हाट वर द कंडीशन दैट forced Britishers to left the India. Okay, first we will discuss about the first point is role of Second World War. Second World War time period 1939 to 45. 39 to 45 के बीच जो वर्ल्ड वार होता है, इसमें जर्मनी ने इंग्लैंड को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया कि अब उसके लिए पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य बनाए रखना मुश्किल था, वो भी भारत जैसे देश में, जहाँ पर उसे काफ़ी सैन्य संसाधनों के साथ अपनी हुकूमत मनवानी पड़ती, क्योंकि यहाँ पर कई विद्रोह हो रहे थे, आतंकवादी घटनाएं हो रही थी. तो पुलिस और प्रशासन को मजबूत करने के लिए काफ़ी अधिक पैसे और काफ़ी अधिक समय की ज़रूरत थी. पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड. सेकेंड पॉइंट इज पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में भी लोगों का विचार बदल रहा था. उनकी जो मानसिकता थी अब कॉलोनियल उपनिवेशवाद से उभर कर अब एक स्वतंत्रतावादी मस्तिष्क की तरफ को जा रही थी. दूसरा, स्प्रेड ऑफ नेशनल मूवमेंट टू प्रिंसली स्टेट. जो रियासतें थीं उनमें भी अब राष्ट्रीय आंदोलन पहुंच चुका था, और रियासतों में भी राजाओं के खिलाफ विद्रोह की आवाज़ें उठ रही थी. वो लोग भी अब आज़ाद होना चाहते थे. इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, इन देशों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर इंग्लैंड पर था कि अब वो उपनिवेशवाद की नीति छोड़े और इन देशों को आज़ाद करे. डाउट्स अबाउट लॉयल्टी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस. और जो इंडियन आर्म फोर्सेस थी, भारतीय सशस्त्र सेनाएं थी, उनकी जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी थी, उनकी जो देशभक्ति थी, उस पर भी अब खुद अंग्रेज़ों को विश्वास नहीं रह गया था. क्योंकि जब दंगे शुरू हो गए तो खुद ब्रिटिशर्स ने महसूस किया कि अब ये पुलिस फोर्स, अब ये सेनाएं उनके नियंत्रण में नहीं है, और वो जातिगत और धर्मगत भावनाओं में बहकर अब देश में दंगों को रोकने में प्रभावी नहीं हो रही है. कीपिंग इंडिया. रोल ऑफ द लेबर गवर्नमेंट. लेबर गवर्नमेंट सत्ता में आती है
क्लेमेंट एटली उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। लेबर गवर्नमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के मुकाबले बहुत ही विपरीत विचारों वाली थी। वे किसी प्रकार से भारत को अपने बंधन में नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने सत्ता में आने से पूर्व ही इस तरह के विचार व्यक्त कर दिए थे। कीपिंग इंडिया अंडर बॉन्डेज वाज नॉट प्रॉफिटेबल। अब भारत को गुलाम रखना अंग्रेज़ों के हित में नहीं था, इसलिए भी उन्हें हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। विल कंटिन्यू विद सेकेंड लेसन प्लान, सो till that time we'll wait that up to that time you revise well this chapter. Okay, we will meet again. Thank you very much.